आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि जिस तरह से बरसात का मौसम शुरू होता है उसके बाद से जो है डेंगू के केसेस जो है लगातार आने शुरू हो जाते हैं। और अभी तक की बात की जाए तो 46 केसेस जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, और ऑल ओवर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो उसमें 56 केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। और ऐसे में इसी को लेकर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक पत्रकार वार्ता जो है कंसर्निंग डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें डेंगू को लेकर तमाम जानकारियाँ जो है दी जाएंगी। आइए आपको बता दें। As you know, in the last year also, we had number of patients of dengue, and we managed them very successfully. I can say in SMBS we had around 1,300 patients of suspected dengue, and out of which 693 were positive for dengue. And I can share, unfortunately, we lost only one life. That too, patient was from UP, and patient had come to Shri Mata Vaishno Devi, and child was had not fully recovered, and the parents, they brought the child there, and child well complication there, and we tried our level best, but we could not save that. But barring that, all the other patients we were able to save. Similar was the position in the medical college. I think Dr. JB will tell about the situation in medical college. Adults. As Department of Medicine is concerned, I am associated with this disease for last, I think, many years. We get many patients. I think in last year we had around 800 patients, and last year there were 600 patients. Means there was rise of 200 patients last year, and most of the time, as far as hospitalization of this patient is concerned, we manage the patients on the outdoor basis. We select these patients depending upon their severity of the disease, and only those who have got the warning signs, who are sick, we admit those patients in our ward. And we have designated emergency area, one floor we have kept for such patients who are sick. And once the patients are stabilized, we shift these patients to ward 3. And we have got fully, as far as manpower is concerned, as far as logistics are concerned, we are fully prepared to handle this disease. This disease has started, season has started, and we expect more cases in coming few months. So we are fully prepared for this disease now. As far as SMG is concerned, we deal with pediatric patients, and the dengue in pediatric patient is severe, because this is said that the second episode, secondary infection, this is more dangerous. And the babies who are less than 1 year, they are, because mother must have suffered in the past, so we treat them as secondary infections. But we geared for that. We had one pediatric ICU. Many of your media brothers and sisters, they had been to SMJS hospital. We have now established new PICU that is 14 bedded. The old PICU that is around 10 bedded, we are dedicated for the dengue severe cases, those who are in shock, those who need immediate attention, monitoring, ventilation. So we have kept that. After that, step down ward, we have kept around 40 beds in our ward, in ward 19. Those beds are for after we stabilize these patients who are very serious, and the discharge after, because we have the discharge criteria which we were following earlier also. 1 day patient should be free of fever, and platelet count should be more than 50,000. There is no vomiting, and child is active. Then we would discharge those patients. So this year also. And fortunately, we have very good support from the Department of Pathology, from microbiology, blood transfusion, because platelet, as far as platelet is concerned, there is a wrong notion in the minds of people that we need platelet transfusion. We hardly need it. Even if platelet goes down to 10,000, then we give platelet. Otherwise, there is no need to give platelet. And below 20,000, we just observe the patient. But at the same time, if we need, we have fully functional unit, 24-hour. Dr. Meena, our HOD blood transfusion, she is always there. She is heading the department, and we have adequate supply of platelet. From this forum, I'll like to caution the public that they should take the preventive measures. That we should, because this is the time
temperature between 60 and 30. This is the time for breeding of this Aedes aegypti. This Aedes aegypti, which is a daytime biter, this breeds in the fresh water, that is water in the tanks, water in the broken these pots, and these pots outside, flowering pots, and all those areas in near the household, which is we say it's a clean water where it breeds, and it is a daytime biter. And so what we have to do after 7 days, because the life cycle is such that after 7 days we must change the water. If we are using the water cooler, we must change the water, and we must keep our these tanks closed. We should keep the lid over the tanks, and so we should not allow these things to happen. And if the children are going or adults are going outside, we should ask them to wear the full clothes and use the mosquito repellents. This mosquito, this is very vigorous in biting. They bite at one place, and this usually bites below the knee joints, and it is present in our household near the sofas. So we have to prevent this disease, and public should be not be alarmed by that mere the name of dengue, because this is just like another viral fever. What we have, if somebody suffers from this disease, what we have to do is we have to take care of our fever. And very important thing which is to be done is we should use only paracetamol. Don't use others like ibuprofen, aspirin, mefenamic acid, because they have the effects on the platelets. So we should use paracetamol and ample quantity of water, and we should ensure that a child should pass urine in 6 hours. And this fever usually lasts for 2 to 7 days, and 5th to 7th, 4th day onward, this is the patient has a critical period. This is the time when the patient can go into shock. So we have to monitor those patients there, and there are the warning signs. If warning signs are there, like child is having persistent vomiting, child is having pain abdomen, child is lethargic, child well bleeding, and other child is having pain abdomen and liver is palpable, which is the non-technical, the technical term for this. So these, if there are warning signs, then we have to bring the child to the hospital. Otherwise, this is cell-limiting disease, and this goes off on its own without complications. But if these signs are there, then we must not keep the child or a patient at home. They must consult the health facilities, and if need be, these children are to be admitted. So important thing is that child should pass urine within 6 hours, and ample quantity of urine. We should give paracetamol and ample supply of water, even ORS and other drinks. Dr. Meena will tell about her preparedness. Yeah. Usually in the month of September, October. But at that time also, number of patients we manage on the OPD basis. We have enough staff for the OPD basis, and we have enough logistic. Only the patients who are having warning signs and those who are serious, they are to be admitted. And at one point of time, we have 40 plus 10 are in the ICUs. So 50 beds are there. If need be, we can extend the facilities, but at present we have kept this. The last year also we managed in one ward, that is ward 19. All the patients are well managed there, and we have all the logistics, we have all the investigative setup, we have all the fluids. 10,000 से अगर कम प्लेटलेट्स होते हैं तो प्रोफाइलैक्टिकली उनको हम चढ़ा सकते हैं प्लेटलेट्स. हमारे पास रैंडम डोनर, जो कि हम ब्लड जो हम पैक लेते हैं डोनर से, उससे भी बनाने वाले इक्विपमेंट है पूरा. और जो SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, जैसे कि किसी का अगर बहुत ही कम प्लेटलेट्स हो या उसका प्लेटलेट फंक्शन प्रॉपर नहीं हो, तो उसको सडनली ज़्यादा ज़रूरत है प्लेटलेट्स की, 30,000 से ज़्यादा है, तो हमारे पास सिंगल डोनर प्लेटलेट्स भी हैं. एफेरेसिस मशीन है, पर उसके लिए हमें सेम ग्रुप का डोनर चाहिए. तो सेम ग्रुप का जो डोनर है वो या तो मीडिया में अगर कोई भी अपील करता है, तो मुझे लगता है कि वो मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा उसको हाईलाइट करना चाहिए और उसको अपील करनी चाहिए लोगों से कि वो इस ग्रुप का डोनर आए और प्लेटलेट फेरेसिस के लिए कोई डोनर आए. क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, पर डोनर जो है वो सोसाइटी से ही आएगा. तो उसके लिए
जो है कि हम आपकी मदद चाहते हैं कि जब भी किसी की तरह इस तरह से कोई अपील हो तो आप लोग ज़रूर हेल्प करें। और काफ़ी सारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो रेगुलरली डोनेट करते भी हैं, ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशंस में से भी हैं तो जो करते हैं डोनेट ब्लड, तो वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को उसके साथ हमारे साथ जोड़ सकते हैं और डोनर्स SDP के लिए जितने भी डोनर चाहिए वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। Our labs in SMGS, emergency, main department, and the super specialty hospital, they all are equipped with cell counters, automated cell counters, and we have put doctors, not now, earlier also, we have postgraduates around the clock on duty, morning, afternoon, in the night. So the basic aim, the hematological investigations which are important in dengue cases, the 3-4 things which have to be kept in mind. One is the platelet count. Whenever we get a low platelet count on a hematology analyzer, it is always cross-checked by the resident who is on duty. मीटिंग का और आपके थ्रू मैसेज हम स्प्रेड करना चाहते हैं कि हर साल डेंगू जब आता है, ये सीज़न डेंगू का आता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मिसकंसेप्शंस और मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन आवर रीजन। हमें काफ़ी प्रॉब्लम पिछले सालों में आई तो इसलिए मैं सोचा कि आपसे इंटरेक्शन करना ज़रूरी है। तो इस बार हमने वेल इन टाइम मेजर लिए हैं। हमारे 2 सेक्शंस हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है और मेडिकल कॉलेजेस हैं। हेल्थ का डॉक्टर हरजीत आपको ज़रूर ब्रीफ करेंगे। मेडिकल कॉलेज का पार्ट मैं बता दूं कि हमने मीटिंग ली और इसको बड़ा सीरियसली लिया अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ डेंगू। तो हमने एक वे आउट और एल्गोरिदम बनाया है जिसके हमने पूरे फ्लेक्स के जो बोर्ड्स हैं हर जगह डिस्प्ले भी किए हैं पेशेंट्स के लिए और इवन हमारे स्टाफ के लिए भी कि जो पेशेंट मेडिकल कॉलेज फीवर से आता है मॉर्निंग आवर्स में कहाँ जाएगा और इवनिंग आवर्स में कहाँ जाएगा। तो मॉर्निंग आवर्स में OPDs में जाएगा, मेडिकल OPD में, और इवनिंग आवर्स में इमरजेंसी में ही विल बी अटेंडेड टू प्रॉपरली। और ये भी बताया कि उसके बाद जो टेस्ट करवाने हैं उसके कहाँ उसको हमने एरिया डेजिग्नेट कर दिया उसको, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। और टेस्ट की रिपोर्ट 6 से 8 घंटे में आ जाती है और नेक्स्ट डे आके हमें रिपोर्ट करेगा कि उसको डेंगू है या नहीं है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो सिक पेशेंट्स हैं दे विल बी अटेंडेड टू इमीडिएटली। उसमें कोई उसके लिए वार्ड्स डेजिग्नेट कर दिए हैं हमने GMC में भी और पीडियाट्रिक सेक्शन में भी। तो उसमें मेन इशू जो हमारा रहता है कि प्लेटलेट्स जब फॉल कर जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। मेन प्रॉब्लम ही हमारी यही आई है पिछले कुछ सालों में। तो इस पर हमने इंश्योर किया है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेटलेट्स। जो मशीन्स हैं, मेरी फेरेसिस मशीन्स हैं, वो 24 आवर्स चलेंगी। ब्लड बैंक की डॉक्टर मीना यहाँ बैठे हैं, आपको बेटर ब्रीफ कर पाएंगी कि हमने रोस्टर बना दिया है अपने टेक्नोलॉजिस्ट का, डॉक्टर्स का। दो मशीन हमारे पास, दो 24 आवर्स अवेलेबल। हाँ, प्लेटलेट्स देने के लिए डोनर्स को एनकरेज कीजिएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि मेडिकल कॉलेज प्लेटलेट्स रैंडम यूनिट तो हम दे सकते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर कहते हैं STP, सिंगल डोनर फेरेसिस। एक ही डोनर से प्लेटलेट्स निकाली जाती हैं और ट्रांसफ्यूज की जाती हैं। उसमें क्वांटिटी और यील्ड ज़्यादा होती है और पेशेंट की लाइफ हम ज़्यादा सेव कर सकते हैं। और वही डोनर 4-5 दिन या हफ्ते बाद दोबारा डोनेट कर सकता है। तो पब्लिक से रियली गुजारिश है कि कई लोग बाहर चले जाते हैं, बड़े 25-30 हज़ार एक फेरेसिस पे खर्चते हैं विदाउट रियलाइजिंग ये फैसिलिटी हमारे जम्मू में अवेलेबल है या नहीं है। तो आपके थ्रू ये मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं, पैनिक ना करें। अगर ऐसा कभी है तो इमीडिएटली हमारे डेजिग्नेटेड वार्ड्स डॉक्टर्स के मिलकर डेजिग्नेटेड वार्ड में एडमिट हो जाएं। हाँ, प्लेटलेट्स हम मॉनिटर करते हैं डे बेसिस पे, या जैसे भी जो हमारा मेथडोलॉजी होती है प्लेटलेट्स मॉनिटर की जाती हैं। और अगर फॉल करती हैं तो मशीन्स अवेलेबल हैं, डोनर्स आपको ज़रूर अरेंज कीजिए। और सोसाइटी को भी बोलिए कि प्लेटलेट्स देने के लिए पीछे ना हटें स्टाफ जो हम, इसी तरह हम अपने पेशेंट की लाइफ सेव करना चाहते हैं। मेरे बात कट करेंगे आप प्लीज़ कर लिए। कोई कुछ पूछना है आपको? अवेयरनेस पार्ट बहुत अहम है। हरजीत आप बताइए। अवेयरनेस डॉक्टर हरजीत बात करेंगे। आपसे मेरा क्वेश्चन है, अवेयरनेस पार्ट के लिए आप किस तरह से? देखो, अवेयरनेस पार्ट के हम जो टर्शरी केयर सेंटर में बैठे हैं, अवेयरनेस के लिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का ही रोल है। न्यूज़पेपर्स में हमारी ऐड चलती है, देन मीडिया में हमारी ऐड चलती है, टीवी में हमारे स्पॉट्स चलते हैं, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती और FM के जितने ब्रांड हैं उसमें हमारे स्पॉट्स चलते रहते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा ब्रांड है कि अगर कोई ऐसा पॉजिटिव पेशेंट्स है उस कम्युनिटी में, उस मोहल्ले में, जो ट्रीटमेंट करा के जाए, वो सबसे बड़ी IC होती है। ऐसे क्योंकि हम जितना मर्जी प्रिंट मीडिया में देते रहेंगे, जब तक जिसको जितनी, अगर मुझे फीवर है तो मैं तभी देखूँगा कि डेंगू की ऐड है, अदरवाइज़ उस ऐड को कोई नहीं देखेगा। तो सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर वही बनता है हमारे जो पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। तो दूसरा, आम जनता के लिए एक कि हमारी डेंगू के लिए जानकारी क्या है, इस साल से हमने लास्ट ईयर भी की थी। 104 हेल्थ हेल्पलाइन है, वो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको इतना डिसैमिनेट कीजिए, हर कम्युनिटी मेंबर्स को पता होना चाहिए कि अगर मुझे हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये हमारी वर्किंग है। 25 सीटर हेल्थ हेल्पलाइन है।
जिसमें हमारे डॉक्टर्स रहते हैं, काउंसलर्स रहते हैं। वो आपको एक तो डेंगू तो है ही है, इसके अलावा और भी कोई समस्या है उसका भी वो समाधान बता सकते हैं कि अगर सपोज़ आपको टेस्टिंग कहाँ करानी है, आपको ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाना है, आपको एडमिशन्स के लिए कहाँ जाना है। इन केस अगर आपके घर में पॉजिटिव पेशेंट्स आ गया डेंगू पॉजिटिव, तो हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं, तो वो सारे के सारे आपको 104 हेल्पलाइन हमारी है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि जैसे इसको कंट्रोल कैसे करना है हमने, तो डेंगू का कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि इसकी स्प्रेड रोकी जाए, इसकी ट्रांसमिशन रोकी जाए। ट्रांसमिशन रोकने के लिए हमें क्या है कि लार्वा का साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा। जो मैंने पहले स्लोगन बताया कि अगर आप 10 हफ्ते जो आने वाले हैं, 10 एतवार 10 मिनट दें अपनी सेहत के लिए, तो हम ये वाला साइकिल ब्रेक कर सकते हैं, ड्राई डे ऑब्जर्व करें। दूसरा, जब डेंगू पॉजिटिव केस आया था तो हमारी टीम जो है वो वहाँ पे जाती है। उसके लिए अगर आपके पास नहीं पहुँच रही तो आप 104 की हेल्प से कॉल करें, अपना एड्रेस लिखवाएं और हमारी टीम विदिन 24 आवर्स उस घर को विज़िट करेगी। और उस टीम का मेन जो मकसद होता है, एक तो वहाँ पे आपके घर में जाके उसने ब्रीडिंग साइट्स चेक करने की लार्वा कहाँ कहाँ है वो डिस्ट्रॉय करेगी। दूसरा, फोकल स्प्रे करते हैं उस घर में और उसके आसपास के घर में मिनिमम 30 to 40 हाउसेज। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये वाली एक्टिविटी हो जाए जिस घर में पॉजिटिव आया और ये वाली एक्टिविटी हो गई, तो हम डेंगू का साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। अगर वो नहीं होती तो फिर 1 से 10 केस बनते हैं, 10 से 100 केस बनते हैं, फिर बढ़ता है। तो कम्युनिटी को ये ज़रूर बताना चाहिए कि, और हमने कई बार देखा कि हमारी टीम कई बार पहुँच जाती है उनके घर में, लेकिन वो बताना नहीं चाहते कि हमारे घर में डेंगू पॉजिटिव केस है, वो छुपाते हैं और इसी कारण जो है वो कॉम्प्लिकेट। तो डेंगू को लेकर तमाम जानकारी जो है यहाँ पर कंसर्निंग डिपार्टमेंट के यहाँ पर दी गई, डॉक्टर्स द्वारा दी गई। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि डेंगू के जब भी आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। उसके अलावा अगर आपको फीवर फील होता है तो आप पैरासीटामॉल जो है इमरजेंसी में ले सकते हैं। अगर आपका फीवर ज़्यादा बढ़ता है तो आपको डायरेक्ट जो है डॉक्टर से कंसल्ट करवाने की जो है ज़रूरत है। इसके साथ साथ इनके द्वारा एक नंबर भी जारी किया गया है, 104 इनके द्वारा नंबर बताया गया, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितनी भी जानकारी आपको डेंगू के रिगार्डिंग लेनी है तो वो आपको मिल सकती है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको जो भी प्रिकॉशंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए हैं आप उसको ज़रूर फॉलो अप करेंगे। और अगर आपको खुद में सिम्टम नज़र आते हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा पीक जो इसमें बताई गई है सितंबर से अक्टूबर, इसमें पीक में ये डेंगू के केसेस जो है रहते हैं। इसको लेकर जो है आपको पहले ही अवेयरनेस जो है डिपार्टमेंट द्वारा दी जा रही है। उम्मीदें करते हैं कि आप इस अवेयरनेस को ज़रूर अडैप्ट करेंगे और लोगों तक भी जानकारी पहुँचाएंगे। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो 104 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहेंगे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।